सर आपकी आवाज नहीं Okay, आ रही। okay. In our today's class, we are going to discuss a new topic, and the topic is resultant. So, what we have done so far we have studied forces, how we can find out the resultant of forces, and for example, if you are having more than one force, so how we can find out the net effect of all these forces. Then we went through moment, and after moment we discussed couple, and we did problems on all those topics. So in today's class, what we are going to discuss the net resultant force, or in other words, we are going to discuss the equivalent system. Okay. Um, for example, if you are having a system, if you have, like, this is your system, and on this system a number of forces are applied, right? So let's say we are having four forces, F1, F2, F3, and F4, and we combine all those forces into a single force. So this single force is known as resultant force, right? This resultant force is having same effect on the system which these four forces were having on this system. Okay, now let's take another example. For example, if we are having a system, we have this system. On this system, we are having some forces acting, F1, F2, and F3. And over here, we have some moment acting over here, another moment acting on this system. Let's say in this system, we are having a number of forces as well as number of moments or number of couples acting on it. So in this case, what we need to do, we will combine all those forces. So when you combine all those forces, let's say this is the resultant force, and when you combine all those moments, so it will be either clockwise or anti-clockwise, but when you combine it, that will be your resultant moment. Then finally, if you combine this force and this moment, so what we will get a net resultant force or equivalent resultant, and that single force will be having the same effect as this force and this moment were having on this system, right? So this single force, this is basically known as the net resultant or the equivalent resultant, and the system is basically known as equivalent system. So this system and this system is now equivalent. So in today's class, what we are going to do, we are going to discuss a system in which a number of forces and a number of couples are acting, and we need to combine all those forces and all those couples into a single force, and that single force will be basically our resultant. So that's why the topic for today's class is result. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So Yes. the resultant, let's see what we have over here. The resultant of system to its simplest force combination means, like, we were having so many forces. So it's resultant of system to its simplest force combination. So this is basically the simplest force combination, which can replace the original forces, means which can replace all these original forces without altering or without changing the effect on this rigid body, means the effect on this body initially and now are the same, or the effect is same which all these forces were having on this system, and the effect that the system have now due to this force, so the effect is same. So without altering the effect on rigid body, which rigid body on which all those forces were applied, right? So let me repeat: the resultant of system to its simplest force combination, which can replace the original forces without altering the effect on rigid body to which the forces are applied. I hope that this thing is now clear, that what we mean by resultant or what we mean by equivalent system. Okay, so whenever you want to find out the resultant, we can have two types of forces, means two system of forces. One of them, when the force is applied on the system, if they are concurrent. What we mean by concurrent? When the line of action of forces meet at a common point.
For example, we are having in this system, in this diagram, if you look at the forces, that is F1, F2, and F3, all of them are meeting at a common point, or their line of action are meeting at some point, right? So these forces are known as concurrent forces. Then we can have another system of forces in which the line of action of all those forces does not meet at a common point. So such type of forces or such system of forces will be known as concurrent forces. So when the line of action of forces doesn't meet at a common point. For example, if you look at this system, we are having this force. So if I extend the line of action of this force, if I extend the line of action of this force, and if I extend the line of action of this force, so you can see these three forces are not meeting at a common point. So we can say these are basically non-concurrent forces. So whether you are having concurrent forces or whether you are having non-concurrent forces, in both cases you can find out the resultant, but the method will be slightly different. So let's see how we can find out the resultant force in case of current forces. Okay, so whatever I have explained before this slide, I can sum up, or I can conclude, or I can summarize it over here in this diagram. So we were having a system. On this system, a system of forces were applied and system of moments were applied. So what we did, we combined all those forces and we found it out. And we found what we found. We found the resultant force. Then we combined all those moments and we found the resultant moment. Right? At the end, what we did, we combined this resultant force and this resultant moment, and what we got basically the equivalent force or the equivalent resultant. So this is the whole procedure. So now let's see if you are having concurrent forces. So in case of concurrent forces, the addition is very much simple, or the resultant determination is very much simple. For example, you are having this force F1, so it's very easy, just simply find out its component. That will be like F1x, that one will be F1y. Similarly, this one will be F2y, this one will be F2x, and then F3x and F3y. So what we need to do, as we know that resultant is basically equal to summation of all forces, right? And the resultant will be having two components, one along x, one along y. So the component along x, it will be combination of all force components in x direction. And for y, it will be summation of all force component in y direction. Okay, so how we can find out the resultant or the magnitude of resultant? So you can just simply take that Rx and Ry, take their square and add them, and then finally took their square root. So you will get the magnitude of resultant. For angle, as we know that tangent theta for given system can be equal to Ry by Rx. Take this tangent to the other side, so it will become tangent inverse, and from here you can find out the angle of resultant force. So this is very much simple, and we have done a number of problems on this method. Means in previous cases, what we were having concurrent forces. Now let's see the second case. If you are having non-concurrent forces, so in this case, how we can find out the resultant? So the method is explained over here, but I will explain it with the help of this diagram. Okay, so I will need your attention here for this slide. We are having three forces. One is F1, F2, and F3. So when you are having non-concurrent forces and you want to find out the net resultant, so the first step that you need to do, you need to find out some common point. You need to select some origin or common point. Let's say the common point in this case is O. Right? Okay, now let's consider this force F1. So the first step that I need to do, I need to shift this force F1 to this point.
but I cannot move it directly because this is not along the line of action of force. You can see line of action of force is this one. So to move it means not along the line of action of force, or means away from the line of action of force, the net effect on the system will be changed. Okay, to cancel out the effect, what I can do, I will apply an opposite force over here, F1, right? So what was the desired output? The desired output was I wanted to shift this F1 from here to this new position. So it is already shifted, but this F1 and this F1 is not desirable, means we want to remove it. So if you look at these two forces are equal in magnitude, opposite in direction, and they are having some perpendicular distance between them. So if we know this perpendicular between these two forces, so we can replace them with the couple, right? And the magnitude of this couple will be any of the force multiplied by the perpendicular distance between them. So what we did, we moved this force over here, that is F1, but while moving this force over here, we got one couple with it. Means the force, when the force was here, F1 was here, this F1 was producing moment about point O. So if you move this force to point O, at this moment it is not producing any moment or any couple or any turning effect about point O. So to incorporate the effect, what we need to do, we need to add that moment over here, right? So we did it. Same will be the procedure for second force. For example, we are having this force. Okay, I want to shift it to this point. So I will just simply shift it over here. Okay, and to cancel down its effect, I will apply force opposite to it. Okay, this force is desirable, these two are not desirable, and they are having some perpendicular distance between them. So we can replace them by a couple, and that couple will be having a magnitude of F2 multiplied by perpendicular distance between them. So you can see we are having F2 over here, we moved it over here, and the couple that we were having due to it, which was in this direction or which was in counterclockwise, it is given over here. In similar way, we will move F3 to this point, right? So here, this is basically F3 and the corresponding couple with are due to F3, which we had initially on the system. यहाँ तक clear है सबको? जी? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir, clear. ठीक है. So अभी इसको मैं जरा clear कर देता हूँ. Okay. So let's move back to our previous slide. We came up till this point. Now what we need to do, we need to combine both of them, and we need to find out the equivalent force. Okay, so let's see in our diagram. Now in this step, what we will do, we will add this one, and this one. So what we will get the resultant moment, and we will add all these three forces. So we will get the resultant force. And how we can add all these three forces at this point? Now they are concurrent, they are passing through same point, right? But they are having some additional moment or turning effect, which we already incorporated. Okay, so now we are having resultant moment and we are having resultant force. So we will combine both of them into a single equivalent resultant. How we can do it? Okay, let's say this is force R. This is for R. How much moment does it produce about point O? जी, point O पे ये कितना moment produce कर रहा है?
नो फोर्स आर। मोमेंट होगा सर। सही है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जी, नहीं है तो मोमेंट नहीं होगा सर, परपेंडिकुलर वेरी डिस्टेंस गुड। हमारे पास। भाई उसी पॉइंट पे एक्ट कर रहा है तो इस पॉइंट पे ये कोई रोटेशन इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर रहा। ठीक है। अच्छा, अगर इसको मैं यहां पे शिफ्ट करूं तो अभी कोई मोमेंट ये पॉइंट ओ पे प्रोड्यूस करेगा? यस ओके, सर। इफ Yes, आई sir. मूव ओके, एंड व्हाट विल बी डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट? Clockwise. क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? काउंटर क्लॉकवाइज होगा। काउंटर क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। ओके, इफ आई मूव दिस फोर्स ओवर हियर, so will it produce any moment about point O? यस सर। यस सर, Okay, क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, क्लॉकवाइज होगा। So if I move this force over here, will it produce any moment about point O? यस सर। Okay, so means by moving force in this direction, it will cause increasing the value of moment, means moment आपके पास बढ़ेगा. And if I move slightly towards this line, so the amount of moment will be reduced, right? यस सर। What I want to say, by increasing this perpendicular distance, the magnitude of moment will increase, right? Yes, sir. Okay, now the question arises that how much should I move this force? How much should I move this force? So I will look, when I move this force, for example, let's say the moment that we have over here, it is 180. So if I move this force over here, I will find out the moment. If the moment is 80, this is not enough. Then I will move it over here. If it is 160, it is still not enough. Then I will move it over here. Over here, it might be 200. No, this is not enough. So I will move it over here. I will check the moment. If it is 180, then what I will do? I will remove this one. I will remove this one. I will remove this one. I will remove this one, right? I will cancel this one. I will cancel this one. This single force will be my resultant, which will be having the same effect of the resultant force as well as resultant moment, right? समझ आ रही है? मींस ये सिंगल फोर्स अभी क्या कर रहा है, इसमें रिजल्टेंट फोर्स का भी इफेक्ट है और रिजल्टेंट मोमेंट का भी है. सो यू कैन सी व्हाट वी डिड इनिशियली, वी आर हैविंग three forces, then we combine, we take them to a single point, okay, and by doing so we also find out the moments that these forces were having about point O. We included those moments, then we added all those forces, we added all those moments, okay, we got the resultant moment, the resultant force, then we combine both of them and we got one resultant force. This is the resultant force, right? So this system is equivalent to this one. यहां तक क्लियर है सबको? यस सर। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. सो हमारे सामने जब प्रॉब्लम आएगा हम क्या करेंगे, we can directly find out the resultant force, we can find out the resultant moment, but the question arises that how we will know the exact distance. क्या हम इसी तरह randomly इसको मूव करते जाएंगे? No, we are having this equation, moment is equal to force into perpendicular distance. So over here we are having this resultant force. You can see by adding all these, we have this moment, we have this resultant. So from here we can find out the perpendicular distance. Once we get this perpendicular distance, let's say this is the perpendicular distance, so we will move this force based on this perpendicular distance, right? So we will find out, the first step we will find out resultant force, then resultant moment. Once we do so, from here we will find out the perpendicular distance and we will move this resultant force at this perpendicular distance. So this one will be our net resultant force. Is it clear? सर ये Yes, sir. रिजल्टेंट मोमेंट किस तरह निकालेंगे, अगर दोबारा बताइए सर।
इसकी तो समझ आ गई ना, मैंने आपको पहले जब एक्सप्लेन किया कि हम इसको मूव करेंगे ना, यहाँ पे इस साइड पे मूव करेंगे या इस पे मूव करेंगे। अगर नीचे में मूव करता हूँ तो मोमेंट का जो इफेक्ट आता है वो काउंटर क्लॉकवाइज आता है, जबकि यहाँ पे एक्चुअल जो मोमेंट है वो क्लॉकवाइज है। सो सेंस नहीं बनता कि आप इसको नीचे लेके जाएं। सो कहाँ पे हम लेके जाएंगे, ऊपर के साइड पे लेके जाएंगे इसको। अभी ऊपर कितना लेके जाएं ताकि ये मोमेंट जो इस फोर्स की वजह से आ रहा है ये एग्जैक्टली इस मोमेंट के बराबर हो जाए। तो मैंने आपसे क्या कहा, इसको आप पोजीशन चेंज करते रहेंगे और वो वैल्यू फाइंड आउट करते जाएंगे। जहां पे आपके पास एग्जैक्ट इसके बराबर मोमेंट आ जाए, दैट विल बी योर पोजीशन जिसपे आपने रिजल्टेंट फोर्स लगाना। क्लियर है ना? एग्जैक्टली इस वजह से इसके बराबर होना चाहिए कि आपने क्या करना है, जो सिस्टम आपके पास है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक सिस्टम, एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, सिविल स्ट्रक्चर बना रहे हैं, एक बिल्डिंग आप बना रहे हैं, ठीक है। आप उसमें एक बीम लगा रहे हैं या आपने उसमें एक कॉलम लगाना है या पूरा का पूरा आपने स्ट्रक्चर डिजाइन करना है। उस स्ट्रक्चर पे आपके पास 200 फोर्सेस लग रही हैं और 200 फोर्सेस की वजह से मुख्तलिफ किस्म के मोमेंट्स भी लग रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, आप वो 200 फोर्सेस तो सेलेक्ट नहीं कर सकते हर एक कैलकुलेशन में, तो आप 200 वो वैल्यूज नहीं लिखेंगे। तो आप क्या करते हैं, उन तमाम फोर्सेस, उन तमाम मोमेंट्स को आप इकट्ठे करके एक सिंगल फोर्स में ले आते हैं। अभी वो एक जो सिंगल फोर्स है उसमें एग्जैक्ट वो सेम इफेक्ट होना चाहिए जो कि उन 200 फोर्सेस की वजह से था। अगर वो इक्वल नहीं होता, कम या ज्यादा होता है, तो आपकी कैलकुलेशन सही नहीं होगी। इज इट क्लियर? या अभी राइटिंग में किसी ने मुझसे क्वेश्चन किया था? ओके, आपको क्लियर हो गया मुराद? यस सर। अच्छा, तो अगर क्वेश्चन ये है कि ये एग्जैक्ट डिस्टेंस अगर मैं इस तरह रैंडमली इसको मूव नहीं करना चाहता, इफ आई वांट टू फाइंड आउट एग्जैक्टली दैट वेयर शुड आई मूव दिस फोर्स, तो उसके लिए मेथड है कि आपके पास मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स इनटू momentum or perpendicular distance. So here we had this moment, we already had this moment, we already had this resultant force. So from here we find it out this t. Once we got this t, ठीक है, तो उस पे हमने फिर ये फोर्स मूव करना था। सो लेट मी रिपीट अगेन। वी गॉट दिस टी। सो ये डी जो हमारे पास है ये इस डायरेक्शन में भी हो सकता है और इस डायरेक्शन में भी हो सकता है। तो आपने क्या करना है, इसको ऐसे डायरेक्शन में मूव करना है ताकि वो इस फोर्स को रिप्लेस कर सके, इस मोमेंट को रिप्लेस कर सके। तो ये मोमेंट क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, इस बेस पे आपने देखना है। सो वेयर शुड वी मूव दिस फोर्स, अपवर्ड और डाउनवर्ड? अपवर्ड सर। अपवर्ड। इज इट क्लियर नाउ? यस सर। यस सर। ओके, मैं इस पे ज्यादा फोकस करूं ताकि क्वेश्चन में फिर आपको मसला ना हो। Okay, so here I have also mentioned this thing. Find out the resultant force, resultant moment, and from here then you can find out this perpendicular distance. What is R? R is the resultant force, M is the net moment, and D is the perpendicular distance. Okay, so let's have a sample problem from your book, Jail Marine. Okay, so in this diagram we are having four forces. Force 1, 2, 3 and 4, right? And what is this? 140 Newton meter. This is not force, it is somewhat like this. So it is basically showing a rotation, right? So this is basically couple or moment. Okay, so in this system we are having how much forces? 4 forces and 4 one forces. couple. One couple. Okay, so determine the resultant of 4 forces and one couple which act on the plate shown. So what we need to do, we need to find out one resultant force that should have the same effect as of these forces and this one couple. Is it clear? Yes sir. So from this very single statement we understand what is required. Okay, so now let's see what will be the first step. The first step will be we need to find out the resultant force. So the resultant force will be definitely, it will be combination of Rx square plus Ry square if you are interested in magnitude. If you are interested in vector form,
right? So in simple word, what we need our x and our y, right? Clear है यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Once we get our x and our y, we will find out r, and then we can also find out angle. Theta is equal to tangent inverse r y by Rx. rx. Okay. Now how we can find out rx? Let's see. Let's consider force 1. Force 1 is having component in x direction. Does it have component in x direction? G. Yes, sir. Yes, sir. ये And does it have any component in y direction? no, sir. No, sir. Okay. So in x direction, it will be 40. In y direction, it will be 0. Okay. Now let's consider another force. Force 2. Does it have component in x direction? Yes, sir. Yes, sir. Or does it have component in y direction? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So we will write down that component in x, it is negative. So it will be whatever value you got, you will write it here. Okay. Then, okay. Similarly, the value in y direction, it will be positive. What about force 3? Does it have any component in x direction? Yes, sir. No, sir. Okay. What is the value in x direction? No, sir. No, sir. X It is direction 0. में नहीं होगा. No, sir. So अच्छा, zero. what about y? इसमें y में इसका component क्या होगा? 50. 50. And then what about this force? 4. Force at number 4. 80 Newton, it will be having x component as well as y component. Yes, sir. Also y component. ठीक है, तो x component positive और y component भी positive. यहाँ तक समझ आ गई है? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so you can see this is, so means what we were having how many values? 1, 2, 3, and one component was 0. So 3 forces here. Then this one was 0. So 1, 2, and 3. 3 were here. So 1, 2, 3 in x direction, 1, 2, and 3 in y direction. Right? इसकी समझ आ गई है? Yes, sir. Okay. So from here we will find out the resultant magnitude, and then we will find out the angle of resultant force. Right? अगर ये तमाम के तमाम फोर्सेस हमारे पास कंकरेंट फोर्सेस होते तो हमारा जो प्रॉब्लम होता वो यहां तक खत्म हो चुका होता. राइट? Yes, sir. अच्छा, अभी हमने क्या करना है? अभी हमने करना है रिजल्टेंट फोर्स तो हमारे पास आ गया. अभी हमने निकालना है रिजल्टेंट मोमेंट. क्या निकालना है? Resultant moment. Resultant moment. रिजल्टेंट मोमेंट. सो इसको मैं रिमूव कर देता हूं बाकी चीजों को. ओके, सो रिजल्टेंट मोमेंट की तरफ अभी आ जाते हैं. रिजल्टेंट मोमेंट के लिए इमेजिन करें कि पॉइंट ओ पे हम निकालना चाहते हैं. पॉइंट ओ मैं क्यों सेलेक्ट कर रहा हूं? क्योंकि पॉइंट ओ पे जब मैं करूंगा ना तो 80 न्यूटन की वजह से पॉइंट ओ पे कितना मोमेंट आएगा? जी, 80 न्यूटन की वजह से पॉइंट ओ पे मोमेंट कितना आएगा? ये जो फोर्स है No, sir. 0. अच्छा, ये 40 न्यूटन की वजह से पॉइंट ओ पे कितना मोमेंट आएगा? Zero, sir. 0. सो इन दोनों फोर्सेस, ये तो क्वेश्चन सही निकल गए. नाउ वी आर हैविंग टू फोर्सेस 60 न्यूटन एंड 50 न्यूटन. इसकी वजह से आपके पास पॉइंट ओ पे आएगा मोमेंट. ठीक है, और एक कपल आपके पास ऑलरेडी है तो उसको एज इट इज लिख लेंगे. मींस मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ सबसे पहले लिख लेंगे 140 न्यूटन मीटर. ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? Clockwise. Anti-clock. एंटी क्लॉकवाइज, तो उसको पॉजिटिव कर देंगे. ठीक है,
ओके, सो रह क्या गया हमारे पास? अभी हमारे पास रह गए, आप इमेजिन करें कि 3 कंपोनेंट्स रह गए। एक हमारे पास रह गया ये कंपोनेंट, ये जो फोर्स है 60 इंटू, ये हो जाएगा 60 इंटू साइन ऑफ 45, और ये हो जाएगा 60 इंटू काज ऑफ 45, और एक 50 न्यूटन फोर्स। सो 50 न्यूटन फोर्स का मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ कैसे फाइंड आउट करेंगे? 15 to 5 Sir, 50 इंटू 5, क्योंकि ये डिस्टेंस हमें यहाँ पे गया, ठीक है। और ये मोमेंट होगा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? clockwise. clockwise. अच्छा, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, 50 इंटू 5। अच्छा ये बताएं, ये जो फोर्स है 60 इंटू कॉस 45 हो जाएगा, तो इसका मोमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे अबाउट पॉइंट ओ? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना होगा ना, जो कि हमें गिवन है। 4 कितना है meter. परपेंडिकुलर? 4 मीटर। 4 और meter. ये भी आपके, और ये क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा? Sir, anti-clockwise. एंटी क्लॉकवाइज, सो दिस वन विल बी पॉजिटिव। सिमिलरली इस कंपोनेंट की वजह से मोमेंट निकाल लेंगे, वो भी ऐड कर देंगे। सो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट मोमेंट आ जाएगा। यू कैन सी 140 माइनस 50 इंटू 5 इंटू 60 cos of 45 4 माइनस 60 sin of 45 इंटू 7, राइट? Yes, समझ sir. आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अभी जब ये सब आप कंबाइन करेंगे, आपके पास मोमेंट आ गया। मोमेंट की वैल्यू क्या है? माइनस 237 न्यूटन मीटर। माइनस, व्हाट डज दिस माइनस मीन्स? Clockwise. रिजल्टेंट जो जी, Clockwise रिजल्टेंट जो movement है, मोमेंट है वो क्लॉकवाइज है। अच्छा, अभी हमारे पास दो चीजें आ गई, हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स भी आ गया और हमारे पास रिजल्टेंट मोमेंट भी आ गया। Now what we have resultant force and we are having resultant moment. Let's see if we can remove all of them. Okay, so what we have now, we are having resultant force and we have resultant moment. Can we combine this resultant force and resultant moment into equivalent resultant? Yes, sir. अच्छा, पहले जरा देख लेना कि रिजल्टेंट 148.3 न्यूटन है और इसका x के साथ एंगल कितना है, 63.2। तो अगर मैं एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स ड्रा कर दूं तो ये कुछ इस तरह से होगा, ये फोर्स कुछ इस तरीके से आपके पास आएगा, राइट? ये आपके पास एंगल होगा 63.2 डिग्री का, सही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, Yes, यू sir. कैन सी इन दिस डायग्राम, यू कैन सी इन दिस डायग्राम। अच्छा, ये मैं इन दोनों को कंबाइन कैसे करूंगा? आई नीड टू मूव दिस रिजल्टेंट एट सम परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कि इसकी वजह से जो मोमेंट है अबाउट पॉइंट ओ वो प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाए। अभी अगर आप देख लें पॉइंट ओ पे कोई मोमेंट इसकी वजह से प्रोड्यूस नहीं हो रहा, ठीक है? तो मैं क्या कर सकता हूं, मुझे या तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस में इसको ऐसे मूव करना होगा और या नीचे की तरफ मूव करना होगा। सो आप मुझे बताएं, इस फोर्स को मैं ऊपर मूव करूं या नीचे मूव करूं? Sir, ऊपर. अच्छा, अगर मैं ऊपर मूव करता हूं तो इसकी वजह से जो मोमेंट है, फॉर एग्जांपल वो मोमेंट है वो क्या आएगा, वो आएगा आपके पास क्लॉकवाइज अबाउट पॉइंट ओ। और ये मोमेंट क्या है, ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज? Clockwise. क्लॉकवाइज। सो आपके ख्याल में जो ऊपर हमने मूव किया ये सही है? Yes, sir. अच्छा सही है, ठीक है। चले तो फिर ये बता दें कि कितना मूव करें इसको ऊपर, परपेंडिकुलर कितना मूव करें, वो डिस्टेंस बता दें मुझे। वो फाइंड करेंगे सर इस फॉर्मूले अच्छा, से. वो कैसे करेंगे? आर Sir, इंटू डी, moment. यहाँ से करेंगे ना? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ से वो डी की वैल्यू Moment. निकालेंगे और वो डी की वैल्यू है 1.6, ठीक है? Yes, sir. अच्छा, सो हमने क्या किया है, इस फोर्स को यहाँ से लेके यहाँ पे 1.6 परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे मूव कर दिया एंड यू कैन सी दिस, ये जो मूवमेंट है ये अभी लगाने की जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर?
Yes, Yes, sir. sir. सोल्यूशन मिल गया ना? Yes, sir. अब इस तरह करते हैं, थोड़ा सा और इसको डिस्कस। प्रॉब्लम यहाँ तक हो गया, यहाँ तक आप प्रॉब्लम करेंगे ना तो बस मसला हल हो जाएगा। इसको आप देखें जरा, ये जो फोर्स है इसको क्या मैं अलोंग लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स मूव कर सकता हूँ? Yes, sir. कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना सिस्टम पे? No, sir. No, sir. नहीं No, पड़ेगा। sir. ठीक है, अच्छा। सो यहाँ पे देखें, अगर इस सिस्टम को, इस फोर्स को मैं यहाँ पे पॉइंट सी पे मूव कर दूं, तब भी वही रिजल्टेंट होगा ना? Yes, sir. अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं कि अगर मैं इस फोर्स को यहाँ पे पॉइंट सी पे लगाना चाहता हूं, अगर मैं इस फोर्स को पॉइंट सी पे लगाना चाहता हूं, ठीक है, और ये फोर्स जो मेरे पास है ये इक्वलेंट रिजल्टेंट है, लेकिन मुझे पता नहीं है कि मैं, अच्छा पॉइंट सी पे वाई की वैल्यू क्या है? वाई की वैल्यू तो 0 है। समझ Yes, आ रही sir. ना आपको? 0 है. Yes, अच्छा, sir. मैं इसको एक्स एक्सिस के ऊपर लेके आना चाहता हूं ताकि वाई की वैल्यू 0 हो जाए। तो ये एक्स की वैल्यू कितनी होगी, ये क्या आप मुझे बता सकते हैं? ये यहाँ पे इन्होंने एक्स की बजाय इन्होंने कहा है कि ये बी की वैल्यू है। चले, ये एक्स की वैल्यू बी है, तो बी की न्यूमेरिक वैल्यू कितनी होगी? क्या ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं? या फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, यहाँ पे नहीं करता इसको, इस पॉइंट पे इस फोर्स को मैं ले जाता हूँ। सो अभी आप मुझे बताएं, अगर ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स हो तो यहाँ पे तो एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, लेकिन वाई की वैल्यू क्या आप मुझे बता सकते हैं? ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर प्रॉब्लम में कोई चीज ऐसी आ जाए, क्वेश्चन की समझ आ रही है ना? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, तो देखें, थोड़ा सा इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। यहां पे देखें, ये फोर्स आप देख लें, इस फोर्स की कितने कंपोनेंट्स होंगे? 2 कंपोनेंट्स होंगे इस रिजल्टेंट के, एक एक्स होगा और एक वाई होगा। ठीक है, राइट? Yes, sir. अच्छा, क्या इस फोर्स को मैं, ये जो एक्स कंपोनेंट है इसको इस पॉइंट पे मूव कर सकता हूँ, पॉइंट ओ पे? Yes, sir. अच्छा, Yes, तो वो sir. तो आसान है। क्या इस फोर्स को, या इन अदर वर्ड ये देख लें, ये मींस अगर मैं मूव कर सकता हूं तो इसका मतलब ये है कि इस कंपोनेंट्स की वजह से, आर वाई की वजह से अबाउट पॉइंट ओ मोमेंट कितना है? 0 है। आर एक्स की वजह से, सॉरी। Yes, sir. अच्छा, और आर वाई की वजह से अबाउट पॉइंट ओ मोमेंट कितना है? वो मुझे पता लगेगा, आर वाई इंटू बी इज इक्वल टू मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ। अच्छा, सो अगर एक्स की वजह से मोमेंट पॉइंट ओ पे 0 है और आर वाई की वजह से मोमेंट है, तो इसका मतलब है कि सारा का सारा मोमेंट किसकी वजह से आ रहा है? आर वाई की वजह से या आर एक्स की वजह से? RY की वजह से. RY की आर वाई वजह की वजह से। आर वाई की वैल्यू आपके पास है, आपने फाइंड आउट की थी क्वेश्चन में? Yes, sir. 132.4. ठीक है, अच्छा, अगर आर वाई की वैल्यू आपने फाइंड आउट की थी, तो ओवरऑल मोमेंट की वैल्यू आपने फाइंड आउट की थी, Yes. Yes, तो sir. क्या आप बी की वैल्यू निकाल सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. तो ये Yes, आप sir. निकाल लें, यहाँ पे पुट कर दें। दैट इज द सेम थिंग Yes. विच दे डिड ओवर हियर। Yes, sir. Moment divided by RY. ठीक है, और अगर मैं पेपर में क्वेश्चन में इसको चेंज कर दूं, मैं आपसे कहूं कि मुझे बताया अगर इसको मैं पॉइंट, इस पॉइंट पे लेके जाऊं फोर्स, इस पॉइंट पे, और अभी मुझे एक्स वाई की वैल्यू बताएं। RY 0 हो जाएगा सर, और ठीक, इस RX केस में वाई तो आपके पास होगा, लेकिन एक्स आपके पास 0 हो जाएगा। एक्स 0 हो जाएगा और वाई की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी। तो आर एक्स की वजह से मोमेंट होगा, आर वाई की वजह से कोई मोमेंट नहीं होगा इस केस में। ठीक है, Yes, sir. ओके। इन्होंने वेक्टर अप्रोच पे भी किया कि मींस फॉर एग्जांपल, इफ दिस इज वेक्टर या मोमेंट आर्म वेक्टर, दिस इज बेसिकली रिजल्टेंट फोर्स एंड दिस इज मोमेंट। ठीक है, तो फोर्स को आप वेक्टर फॉर्म में लिख दें, मोमेंट को भी आप वेक्टर फॉर्म में लिख दें, और जो आपके पास मोमेंट आर्म है उसकी जगह कोई भी रैंडम वेक्टर आप लिख दें। ठीक है, इसको आप सॉल्व करें।
So what you will get this thing. When you get this thing, इसको equivalent कर दें राइट साइड के. So जब आप राइट साइड के equivalent करेंगे आपके पास ऐसी वैल्यू आ जाएगी. If you put y is equal to 0 तो x की वैल्यू आ जाएगी. If you put x is equal to 0 तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay, so let's move toward this example. So this is an example on equivalent system. What they are saying? They are saying compute the resultant force for the forces shown and the resultant couple for the moments of force about point A. Means you are having how many forces? 1, 2, 3, 4. 4. You need to find out resultant at point A and also the resultant couple at point A. Right? So Yes, sir. the first step will be definitely it will be find out the resultant force. So it will be Rx plus Ry. So in this case, Rx is how much? 0, sir. So R will be equal to Ry. Okay. So Ry component, this is 150. This is 100. That will become 250. This one will become minus 250. So we will left with Ry is equal to 600 Newton and downward direction minus J. Right? Yes, sir. Okay. अभी क्या करना है? Okay, if this 600 Newton force was here, it was producing any moment about point A. Whether it was producing any moment about point A. Yes, sir. अच्छा. If I move it over here, अभी ये moment produce कर रहे हैं यहाँ पे. अगर मैं इस फोर्स को A पे शिफ्ट कर दूं तो A पे फिर ये मोमेंट प्रोड्यूस करेगा? No, sir. No, sir. अच्छा. सिमिलरली ये फोर्स भी कोई मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा था, ये भी कोई कर रहा था. अभी सबको मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया. सो इस फोर्स की वजह से जो मोमेंट था वो क्लॉकवाइज था. इसकी वजह से जो मोमेंट था वो एंटी क्लॉकवाइज था. इसकी वजह से जो मोमेंट था वो क्लॉकवाइज था. तो अब क्या करें, ये सारे मोमेंट्स फाइंड आउट करके इसको ऐड कर दे और जो मोमेंट आपके पास आ जाए उसको पॉइंट ए पे लगा दे. इज इट क्लियर? तो 600 न्यूटन फोर्स की वजह से मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ कैसे फाइंड आउट करेंगे जी? 600 multiplied by 1.6. 600 multiplied 1.6. What Force multiplied distance, sir. ठीक है. What about 250 न्यूटन? सर डिस्टेंस को 4.8 ऐड करके जो है 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है. 4 ठीक है. इसकी समझ आ गई ना आपको? 1.6. यस सर. ठीक है. 600. ओके. सो यहां से अब देख लें, व्हेन वी डू सो हमारे पास ये आपके पास रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा एंड दिस इज आवर रिजल्टेंट मोमेंट. समझ आ रही है? यस सर. 4.8. अच्छा. 250 So, ये multiplied आपके by पास 4.8. अच्छा ठीक है. तो 250 मल्टीप्लाई बाय 4.8, सेकंड फोर्स मल्टीप्लाई बाय 2.8 एंड थर्ड फोर्स मल्टीप्लाई बाय 1.6. इनको ऐड करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा? 18 न्यूटन मीटर. अच्छा, ये मोमेंट का डायरेक्शन ये आई है या जे है या के है जी? इस डायग्राम को देख के मुझे बताएं कि इन्होंने के लिखा है, कैसे ये डायरेक्शन किए हैं मोमेंट का? जी वेरी गुड, बाय राइट हैंड रूल. ये देखिए जिस डायरेक्शन में रोटेशन है, राइट हैंड की फिंगर्स को ऐसे जरा रोटेट करें ना, आप ऐसे रोटेट करें ना, तो आप देखें कि आपका जो थंब है वो किस डायरेक्शन में है, वो इस डायरेक्शन में चला जाएगा. समझ आ रही है? यस सर. एंड दैट्स व्हाई इट इज के, आई जे के. इज इट क्लियर? यस सर. Yes, sir. अभी सेम प्रॉब्लम है, वो आपसे कह रहा है कि आपके पास जो आंसर यहाँ पे आ गया ना, यहाँ पे अभी आपके पास जो आंसर आ गया है, अभी इस फोर्स और मोमेंट को आप राइट साइड पे शिफ्ट करें, पॉइंट बी पे शिफ्ट करें.
ठीक है, तो वो हम क्या कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को रिपीट करेंगे सेम प्रोसीजर के लिए, और हर एक फोर्स को और कपल को पॉइंट बी पे शिफ्ट करेंगे। एक ये हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया, लेट्स सी क्वेश्चन में देख लेते हैं। पार्ट बी देख लें क्या लिखा हुआ है। फाइंड एन इक्विवेलेंट फोर्स कपल सिस्टम एट बी बेस्ड ऑन फोर्स कपल सिस्टम एट ए। ठीक है, सो कहने का मतलब यह है कि इन्होंने आपसे कहा है कि आपके पास क्वेश्चन अभी ये है, दिस इज योर क्वेश्चन, आपने क्या करना है, इस फोर्स को और इस कपल को इस पॉइंट पे मूव करना है, तो वो हमने करना है। इससे वही आंसर आएगा कि अगर आप इन तमाम फोर्सेस को, उसकी वजह से जो कपल है उसको यहाँ पे पॉइंट बी पे मूव करें, तो दोनों से सेम आंसर आएगा। आप दोनों तरीकों से करके अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं, बट लेट्स सी ये हम कैसे करेंगे। अच्छा देखिए, अगर मैं इस 600 न्यूटन फोर्स को यहाँ पे शिफ्ट कर दूं, ठीक है, और मैं अपोजिट डायरेक्शन में भी एक फोर्स लगा दूं, तो इस सिस्टम पे कोई फर्क पड़ा? No, sir. नो सर। नो सर। ओके, तो ये बताएं मुझे, ये डिस्टेंस कितना था? 4.8। 4.8 ये तो मैंने मूव करना था ना, ये तो डिजायर्ड है। अभी ये और ये तो डिजायरेबल नहीं है, तो इनकी जगह मैं कपल लगा सकता हूँ, यस सर। और ये कपल तो आपको पता है हर एक पॉइंट पे सेम होता है, फ्री वेक्टर। तो ये कपल की वैल्यू जरा अगर आप मेरे लिए कैलकुलेट कर दें तो आसानी हो जाएगी। जी, कितना है यहाँ पे कपल, जरा बता दे। 600 इंटू 4.8 हो जाएगा ना, तो 6 4 और 6 5 30, ये 29। जी सर किसका है यार, 2880. 624 और सिंगल कितना, 2880. 2880। अच्छा, और डायरेक्शन जो आपके पास आ रही है, डायरेक्शन पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी इसकी, इस कपल की? जी, पॉजिटिव। डायरेक्शन शुड बी पॉजिटिव। अच्छा, तो ये दिस इज 600 न्यूटन फोर्स। अभी ये मुझे बताएं कि ये कपल आपके पास है क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, दोनों को जब कंबाइन करेंगे क्या आ जाएगा, ये इससे माइनस हो जाएगा ना, तो एंटी हमारे पास 1000 न्यूटन मीटर सिर्फ रह जाएगा। ठीक है, और ये चीज जो है, ये चीज खत्म हो जाएगी, इसी तरह होगा ना। यस सर। यस सर। ओके, सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अभी थर्ड आंसर में देख लेते हैं कि थर्ड पार्ट में इन्होंने क्या कहा है। थर्ड पार्ट में इन्होंने हमसे ये कहा है कि आप ऐसे करें कि इन दोनों को कंबाइन करके आर इक्वलेंट निकालें, या इन दोनों को कंबाइन करके आर इक्वलेंट निकालें। ठीक है, तो वो कर सकते हैं जी, किसी तरीके से कर सकते हैं वो आप। यस सर। कैसे करेंगे? सर फोर्स फॉर को मूव कर। एग्जाम्पल यहां से कर लेते हैं, फोर्स को मूव करके। अच्छा, फोर्स को कितना मूव करेंगे, किस डायरेक्शन में मूव करेंगे? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो फोर्स है वो 600 न्यूटन है, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर हमारे पास डी हो जाए, और मोमेंट है हमारे पास 880। ठीक है, तो अभी इस पॉइंट ए पे ये मोमेंट प्रोड्यूस नहीं कर रहा, मैं इसको कितना यहाँ पे परपेंडिकुलर मूव करूंगा, अगर यहाँ पे करता हूँ तो कितना मोमेंट आएगा, यहाँ पे कितना करता हूँ। इन अदर वर्ड्स, मुझे एग्जैक्ट डी की वैल्यू चाहिए, तो क्या ये डी की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ? यस सर। जरा निकाले, क्या वैल्यू आएगी? 3.1 मीटर। कितना? 3.13 मीटर। 3.13, तो ये टोटल 4 है, यहाँ पे कहीं पे आपके पास ये फोर्स लगी है। ठीक है, तो ये दोनों खत्म हो जाए। ठीक है, सो दिस इज अवर रिजल्टेंट। अगर मैं ये डिस्टेंस यहां से निकालना चाहूँ तो ये कितना होगा, 3.13, और अगर ये डिस्टेंस मैं यहां से निकालना चाहूँ फिर कितना होगा पॉइंट बी से? 4.8। सॉरी
4.8 से माइनस कर देना तो आपके पास 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ठीक है, 1 point. सो देख लेते हैं यहाँ पे ये सॉल्व हुआ भी है। यू कैन सी दिस इज 3.13 मीटर, राइट, एंड दिस इज दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस टी। अच्छा, आपने देखना है इसमें बाजों का मुझसे भी गलती हो जाती है। अभी प्रीवियस जो लेक्चर मैंने अपलोड किया उसमें भी कुछ मिस्टेक इस तरह होती है कि बाजों का हम सॉल्व करते हैं क्लास में, वहां पे एक आध वैल्यू हम मिस कर देते हैं। सो यू मस्ट नो द कंसेप्ट। ठीक है, यहाँ पे भी अभी आई जस्ट गॉट एन एरर। ये देखें, ये रिजल्टेंट यहाँ पे इन्होंने -600 तो ओके, आई थिंक 600 न्यूटन इज ओके। ठीक है, कोई मसला नहीं है इसमें, लेकिन 650 में मसला है। यहाँ पे 650 है ना, ठीक है। ये देखिए 150 + 100 - 250 तो 600 होना चाहिए था। दिस इज बेसिकली 600। ऐसी कोई गलती अगर हो आप थोड़ा सा केयरफुल रहा करें। Yes, sir. समझ आ गई इस चीज की? Yes, sir. ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड एक्सरसाइज प्रॉब्लम। एक्सरसाइज प्रॉब्लम में क्या पूछा गया वो देखते हैं। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टेंशन टी। क्वेश्चन को जरा समझ लें। हमारे पास एक फोर्स है टी, दूसरा फोर्स है 8 किलो न्यूटन, तीसरा फोर्स है हमारे पास 6 किलो न्यूटन। तो आपने क्या करना है, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टेंशन टी। ये टी जो है इसका तो मैग्नीट्यूड निकालें पहले, फिर क्या करें, ये एंगल भी निकालें। ये दोनों रिक्वायर्ड है। अच्छा, इन्होंने फिर क्या आपको कंडीशंस दिए, फॉर विच आई बोल्ट, ये आई बोल्ट है आपके पास, विल बी अंडर रिजल्टेंट डाउनवर्ड फोर्स। रिजल्टेंट डाउनवर्ड फोर्स का क्या मतलब है कि अगर आप इन तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालेंगे तो रिजल्टेंट क्या होगा, Negative X. डाउनवर्ड होगा। आपके रिजल्टेंट क्या होगा, Negative डाउनवर्ड Y. होगा। मींस रिजल्टेंट का जो एक्स कंपोनेंट है वो 0 होगा और रिजल्टेंट इक्वल होगा सिर्फ डाउनवर्ड कंपोनेंट के, और वो डाउन कंपोनेंट कितना है, 15 किलो न्यूटन। समझ आ गई है? Yes, sir. अच्छा, और एक्स कंपोनेंट क्या होगा, 0. 0 होगा 0 सर। होगा। 0 होगा। सो आप क्या करें, आप इस तरह करें, आप निकालें आर वाई होगा 15 किलो न्यूटन के बराबर, और इस फोर्स का जो वाई कंपोनेंट है, इस फोर्स का टी वाई जो है वो टी साइन थीटा हो जाएगा। इस फोर्स का जो वाई कंपोनेंट है 8 किलो न्यूटन का, वो क्या हो जाएगा जी? 8 cos 30. अच्छा, और इसका जो वाई कंपोनेंट है वो कितना हो जाएगा, 0. 0। तो ये देखें, टी साइन 8 cos 30 + 0। अच्छा, फिर जरा कर लेते हैं आर एक्स के लिए, कर लेते हैं आर एक्स = 0। एक्स कंपोनेंट देख लेते हैं। इसका जो एक्स कंपोनेंट होगा टी का, वो क्या हो जाएगा, T टी cos कॉस थीटा हो जाएगा ना, और माइनस के साथ होगा ना, क्योंकि डायरेक्शन ये है। सही है? Yes, इस sir. 8 किलो न्यूटन का जो एक्स कंपोनेंट है वो क्या होगा, 8 sin 30. और ये इसका जो एक्स कंपोनेंट है 6. 6। तो ये देखिए टी कॉस थीटा -6 - 8 sin 30। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे टी साइन थीटा = 8.07, इसको सॉल्व करेंगे टी कॉस थीटा = 10 आ जाएगा। ठीक है, अगर इन दोनों को मैं डिवाइड कर दूं, इसको डिवाइड कर दूं और इसको डिवाइड कर दूं, तो टी टी तो कैंसिल हो जाएगा ना, साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या आ जाएगा, टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा से कोई वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और थीटा को क्या करें, थीटा को अपनी जगह पे रहने दे, टेंजेंट को दूसरे साइड पे ले जा, तो ये क्या हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स हो जाएगा ना। Yes, sir. ठीक है, टेंजेंट इनवर्स हो जाएगा, यहां से एंगल आ जाएगा आपके पास। जी, एंगल आ जाएगा। Yes, sir. Yes. एंगल Yes, को sir. यहाँ पे पुट करें या इसको आप यहाँ पे पुट करें, दोनों पे कहीं पे भी पुट कर दे, आपके पास क्या आ जाएगी, आपके पास टी की वैल्यू आ जाएगी। इज इट क्लियर? Yes, sir. प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।
नाउ लेट्स सी अनदर प्रॉब्लम। अच्छा, इस प्रॉब्लम में क्या है, इसमें ये फोर्सेस देख लें, आपके पास कितनी फोर्सेस है, 1 2 3 4। ये फोर्सेस कंकरेंट है या नॉन कंकरेंट है? कंकरेंट है सर। तो बस इसका रिजल्टेंट निकालना है, इसका रिजल्टेंट निकालना है, कंपोनेंट्स निकालें और ऐड करें, आर एक्स आर वाई, ठीक है, मैग्नीट्यूड निकालें, डायरेक्शन निकालें, वेक्टर फॉर्म में लिखें। इट्स इजी, आई थिंक कर लेंगे ना। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir, it's clear. अच्छा, Yes. अभी आ जाते हैं इस Yes. प्रॉब्लम पे। इसमें से एक मैं आपको करवा देता हूँ, ये 3 पार्ट्स है इसके ना, तीनों सिमिलर है, रिमेनिंग फिर 2 सॉल्व हुआ है, वैसे मैंने सॉल्व किया इसको। डिटरमिन द इक्विवेलेंट फोर्स कपल सिस्टम, इक्विवेलेंट फोर्स कपल सिस्टम एट द ओरिजिन ओ। मींस प्रॉब्लम को भी देख लेते हैं, इसमें देख लें 1 2 3 4 4 फोर्सेस लग रही है। आप क्या करें, इन तमाम फोर्सेस को पॉइंट ओ पे मूव करें। सो जब मूव करेंगे तो रिजल्टेंट फोर्स तो आ जाएगा ना। अभी ये जो मोमेंट प्रोड्यूस कर रही है तमाम फोर्सेस पॉइंट ओ पे, तो फिर तो वो मोमेंट नहीं रहेगा। तो आप क्या करें, पॉइंट ओ पे जो रिजल्टेंट फोर्स है और जो रिजल्टेंट कपल है वो दोनों फाइंड आउट करें। स्टेटमेंट की समझ आ रही है? यस सर। Yes, अच्छा, sir. फिर क्या करें, फॉर ईच ऑफ द 3 केसेस ऑफ फोर्सेस बीइंग अप्लाइड टू द एज ऑफ सर्कुलर डिस्क। अच्छा, फिर क्या है, इफ द रिजल्टेंट कैन बी सो एक्सप्रेस, रिप्लेस दिस फोर्स कपल सिस्टम विद अ स्टैंड अलोन फोर्स। इसका क्या मतलब हुआ? जी, what does it mean? If possible, if the resultant can be so expressed, replace this force couple system with a stand alone force। स्टेटमेंट का क्या मतलब है? सर उन दोनों को कंबाइन कर देना, कपल और फोर्स को। हाँ, एक अगर force। पॉसिबल है तो आप कर दें, ठीक है। सो जरा इस डायग्राम को देख लें, बल्कि तीनों में यही है, ये फोर्स आप देख लें और ये फोर्स, ये दोनों कपल बना रहे हैं या नहीं बना रहे? जी, यस सर, बना रहा है। बना रहे। तो ये फोर्स, अच्छा, इनके दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? आर आर 2r हो जाएगा ना, और ठीक है। Two or sir. यस सर। अच्छा, तो अगर मैं इसको इन दोनों फोर्सेस को रिमूव कर दूं तो यहाँ पे मैं F इंटू 2r या 2FR लिख सकता हूँ। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। अच्छा, ये देखें, अगर मैं इस फोर्स F को यहाँ पे इस पॉइंट पे मूव करना चाहूँ, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपोजिट डायरेक्शन में भी फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। यस सर। अच्छा, ये F और ये F अभी कपल बना रहे हैं, इन दोनों को Yes, क्या sir. मैं कपल से रिप्लेस कर सकता हूँ? यस सर। उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? इसका आर होगा। मैग्नीट्यूड FR हो जाएगा ना, एफ आर। यस सर। Yes, sir. ठीक है। FR. इस फोर्स को मैं यहाँ पे मूव कर सकता हूँ सिमिलर वे में, इस फोर्स को। यस सर। यस सर। अच्छा, तो जब वो मूव करूंगा, ये फोर्स पहले ऑलरेडी F था, ये 2F हो जाएगा ना। Yes, sir. यस सर। और इन दोनों फोर्स, ये जो फोर्स मैंने यहाँ पे किया उसकी वजह से एक कपल ऐसे आ जाएगा, ये भी FR होगा। जी सर। अच्छा, ये देखिए, ये दोनों FR एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, यस सर। ये भी Yes, FR sir. है, ये भी Yes, FR और sir. डायरेक्शन। अच्छा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, हमारे पास रह जाएगा एक, हमारे 2FR पास है। डाउनवर्ड फोर्स रह जाएगा 2F, और साथ में हमारे पास ये जो मोमेंट है, जो कपल है 2FR, ये रह जाएगा। सो जो पहला पार्ट था ना, कि डिटरमिन द इक्विवेलेंट फोर्स कपल सिस्टम एट ओरिजिन O, वो हो गया। अभी इन्होंने क्या कहा, अगर पॉसिबल है तो आप क्या करें, इस फोर्स और कपल को कंबाइन करके एक सिंगल फोर्स हमें बता दें। वो कैसे हम करेंगे, इस सिंगल फोर्स को हमें किसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे मूव करना होगा ना, ठीक है। तो Yes, sir. हमें पता है कि मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अच्छा, मोमेंट कितना है आपके पास, जरा देख लें। 2FR. 2FR। और रिजल्टेंट फोर्स कितना है? 2F। ठीक है, और ये तो हमने फाइंड आउट करना है ना, तो ये Yes, 2F sir. 2F कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, D किस चीज के बराबर हो जाएगा?
और R के इक्वल हो जाए। Yeah. आर के इक्वल। सो इसका मतलब ये है कि अगर इस फोर्स को मैंने क्या करना है, मैंने या तो इस फोर्स को आर के बराबर यहाँ पे शिफ्ट करना है या यहाँ पे शिफ्ट करना है। इस फोर्स को या तो मैं यहाँ पे शिफ्ट करूंगा या यहाँ पे शिफ्ट करूंगा, लेफ्ट पे शिफ्ट करूँ या राइट पे करूँ। जी व्हाट यू थिंक? लेफ्ट पे। लेफ्ट पे। अगर राइट पे करूं फिर क्या होगा? फॉर एग्जांपल अगर मैं राइट पे करता हूँ क्लॉकवाइज वो डायरेक्शन अपोजिट। क्लॉकवाइज, और यहाँ पे मोमेंट क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज है। तो यहाँ पे मैं नहीं कर सकता ना, तो किधर करूं मूव? लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट पे। लेफ्ट पे। सो दिस इज योर आंसर। लेफ्ट। ठीक है। यस तो सर। फोर्स हमारे पास क्या है? फोर्स का जो मैग्नीट्यूड हमारे पास आया वो 2F है, और उसका जो डायरेक्शन था वो J में -J या -5 में था। इज इट क्लियर? यस और सर। जो sir. मेरे पास जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू आई वो अलोंग x थी। अलोंग x थी ना ये वैल्यू? अलोंग Yes, x sir. थी। यस और सर। मैंने राइट पे मूव किया है, लेफ्ट पे मूव किया है। लेफ्ट पे लेफ्ट पे। गए। तो तो माइनस R अनदर होगा। -x इज इक्वल टू r या x इज इक्वल टू -r, जो भी आप माइनस R। लेंगे। ठीक है। एंड दिस इज योर यस आंसर। सर। सिमिलरली पार्ट 2 के लिए, पार्ट 3 के लिए आप खुद कर लें, और ये चीज यहाँ पे देख लें। मैंने हैंड रिटन में यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश की भी है। ये देखिए, इन दोनों की बजाय मैंने कपल यहाँ पे पुट कर दिया, फिर इसको यहाँ पे मूव किया एक फोर्स को, तो यू कैन सी। ठीक है। फिर मैंने दूसरे को मूव किया इस फोर्स को यहाँ पे, तो यू कैन सी अनदर कपल, और ये फोर्स आपके पास आ गया यहाँ पे। फिर मैंने फाइनली इसको मूव करके सॉल्व किया। सिमिलरली बाकी पार्ट्स को भी मैंने यहाँ पे किया। आई थिंक यू ऑलरेडी अंडरस्टूड, बट इफ यू नीड टू हेल्प यू कैन टेक इट। ठीक है। हो गया सर। नाउ यहाँ पे देख लें, डिटरमिन द हाइट h अबाउट द बेस b में बेस b के ऊपर कितनी हाइट होनी चाहिए, किसके लिए? at which the resultant of three forces act. We are having these three forces. Okay. So the resultant of three forces act. So the point where forces act, वो आपने वो पॉइंट निकालना है, रिजल्टेंट पहले निकालना है, और फिर रिजल्टेंट फोर्स कहाँ पे एक्ट करना चाहिए। ठीक है, ताकि उस फोर्स में सारा का सारा। तो क्या तरीकेकार हम करेंगे? पहला स्टेप क्या होता है? रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है, दैट शुड बी इक्वल टू rx प्लस rx स्क्वायर प्लस ry स्क्वायर। तो rx तो आपके पास है, लेकिन ry आपके पास कंपोनेंट है? नो सर। तो r शुड बी rx। ठीक है। Yes, sir. और x कितना है? 650 माइनस 300, ये 350 हो जाएगा, माइनस 250, तो 100 आपके पास आ जाएगा ना। Yes, सही है यहाँ sir. तक? यस। अच्छा, फिर क्या करें? इस तरह कर लेते हैं, पॉइंट बी पे मोमेंट निकाल लेते हैं, मोमेंट अबाउट पॉइंट बी। तो इस फोर्स की वजह से 300 की वजह से मोमेंट कितना होगा पॉइंट बी पे? इसकी वजह से जो मोमेंट आएगा वो होगा एंटी क्लॉकवाइज, और 300 मल्टीप्लाई बाय दिस डिस्टेंस 1800। 600 600 600 1800 1800 या 1800 डिवाइड बाय 1000 कर दे तो मीटर आ जाएगा ना। 300 90. 0.18 मीटर। ठीक है, क्लियर है? यस सर। Yes. फिर इसकी वजह से क्लॉकवाइज होगा ना, ये आपके पास नेगेटिव हो जाएगा, और इसकी वजह से फिर एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। इससे आपके पास क्या आ जाएगा? मोमेंट की वैल्यू आ जाएगी। मोमेंट की वैल्यू आ जाएगी। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, सो मोमेंट की जो वैल्यू आपके पास आएगी, फिर आपने क्या करना है यहाँ पे, एम बी इज इक्वल टू आर इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन्होंने इस केस में कहा है कि उसको आपने एच का नाम देना है। ठीक है, तो यहां से हम एच निकाल सकते हैं। Yes, sir. तो जो भी एच आएगा बस उस पर आप वो फोर्स अप्लाई कर दें, इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, जो भी आपके पास है। फोर्स हमारे पास क्या आई थी? 100 न्यूटन आई थी, पॉजिटिव आई थी ना, तो 100 न्यूटन इस डायरेक्शन में होगी। समझ आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. कर लेंगे। Yes, sir. Yes. अच्छा, यहाँ पे जो राइट साइड पे आपको शो हुआ है ना, दिस इज, यू कैन सी द यूनिट्स आर चेंज।
ये 300 LB है, ठीक है। दिस इज 60 इंचेस, सो दिस इज फॉर फुट पाउंड सिस्टम। आपको जो प्रॉब्लम दिया गया है, ठीक है, आपने वो वैल्यूज यूज किया। आई हैव यूज्ड दोज वैल्यू ओवर हियर, सिर्फ आपको बताने के लिए, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि दिस इज बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट, ठीक है। ओके, नाउ let's have another example, another problem. If the resultant of two forces and couple passes through point O, if the resultant of two forces and couple M, so जिस पॉइंट से आपके पास रिजल्टेंट पास होता है उस पॉइंट पे मोमेंट कितना होता है, जिस पॉइंट से फोर्स पास होता है? जी, जीरो होता है। जीरो होता है जीरो। सर, जीरो। अगर रिजल्टेंट फोर्स किसी पॉइंट से पास हो रहा है तो इसका मतलब है उस पॉइंट पे रिजल्टेंट मोमेंट जीरो होगा ना। Yes, sir. यस सर। यस तो सर। ये कह रहे हैं कि अगर ये रिजल्टेंट फोर्स इस पॉइंट से पास हो रहा है, इसका मतलब है इस पॉइंट पे रिजल्टेंट मोमेंट जीरो होगा। रिजल्टेंट जीरो। मोमेंट किस वजह से आ सकता है सिस्टम में? ये देखिए, ये एक मोमेंट ये है जो कि किस डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज है, और ये दो फोर्सेस है। ये फोर्स एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि आप क्या करें, अगर इस फोर्स को मैं F1 नाम दे दूं और इसको मैं F2 का नाम दे दूं, तो ये आपसे कह रहा है कि M1 माइनस F1D माइनस F2D that should be equal to 0, या in other words M should be equal to F1D plus F2D। यही है ना? यस सर। अच्छा, F1, अब अभी ये मसला ये आ गया, F2 आपके पास ये फोर्स है 320, F2 और पॉइंट O के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ये D1 जो है या D2 जो है, ये आपके पास है 300 मिलीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, 300। ठीक है। अच्छा ये बताएं, यस सर, जीरो। F1 400 न्यूटन और पॉइंट O के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 150 मिलीमीटर। दिस इज द मिस्टेक दैट यू मेक, दिस इज नॉट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इन दोनों के Angle. दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ये है, Yes, ठीक है। sir. हमने ये फाइंड आउट करना है। सो व्हाट इज दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, ये एंगल गिवन है आपको यस सर। 30 और ये 150 है, तो क्या आप ये निकाल सकते हैं? 150 into cos. 30, ठीक है, Yes, कर लेंगे sir. ना? अच्छा, नाउ मल्टीप्लाई दिस विद दिस वन, सो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी, इसकी आ जाएगी। फ्रॉम हियर यू कैन फाइंड आउट m, व्हाट दे वांट डिटरमिन m, आपने m फाइंड आउट करना। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, वन मोर थिंग, यूजुअली क्लास में होता क्या है, क्लास में वी आर सपोज टू गिव यू द कंसेप्ट, हमने आपको कंसेप्ट देना होता है और उस कंसेप्ट के बेस पे एक आध एग्जांपल या प्रॉब्लम करके उस पर डिस्कशन करनी होती है। रिमेनिंग जितने एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स है, स्टूडेंट आर सपोज टू डू दोस प्रॉब्लम्स, ठीक है, ताकि उनकी प्रैक्टिस हो सके। लेकिन चूंकि ऑनलाइन में हमारे पास टाइम होता है, इस वजह से कोशिश करते हैं कि जितनी मैक्सिमम प्रॉब्लम्स हम यहाँ पे कर सकें। एंड अगेन, प्रॉब्लम एक्सप्लेनेशन तो मैं ज्यादा देता हूँ, लेकिन उतना स्टेप बाय स्टेप मैं नहीं लिखवाता पेपर में या असाइनमेंट में। जब आप ये करेंगे, सो व्हाट यू नीड टू डू, आपने हर एक प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप करना होगा। लाइक यू नीड टू राइट द गिवन डेटा, द रिक्वायर्ड डेटा, द assumptions, द डायग्राम एंड द सॉल्यूशन, ऑल दो स्टेप बाय स्टेप आपने करने होंगे, राइट? यस सर, सही है। अच्छा, ये प्रॉब्लम है, इसमें ऑलमोस्ट सेम प्रॉब्लम है, मींस आपके पास अगेन रिजल्टेंट पॉइंट ओ से पास हो रहा है, एफ आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो एफ की वजह से और बाकी जो मोमेंट है दोनों को इक्वल कर दें, आपके पास एफ की वैल्यू आ जाएगी, मींस यहाँ से जो Yes, मोमेंट sir. आ रहा है, ठीक है, और इन दो फोर्सेस की वजह से जो मोमेंट आ रहा है ये इक्वल है। तो ये तो सारे न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, देख लें, ठीक है। इसमें भी एक न्यूमेरिक वैल्यू है, एक एफ अननोन है, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। Okay, so over here, what they are asking, determine and locate resultant R of two forces and one couple acting on the I beam। अच्छा, ये क्या कह रहे हैं कि आपके पास दो जो फोर्सेस है और एक कपल है आई बीम पे एक्ट कर रहा है। आप क्या करें, आप इस तरह करें कि इसका रिजल्टेंट निकालें।
जब आपसे डायरेक्ट रिजल्टेंट पूछा जाए तो इसका मतलब है कि इक्विवेलेंट रिजल्टेंट की बात हो रही है। अच्छा, तो सबसे पहला स्टेप तो क्या होगा, वही रिजल्टेंट फाइंड आउट करना होगा। Yes, sir. ठीक है, तो इसमें तो आपके पास देखिए एक्स कंपोनेंट है नहीं, तो आर डायरेक्ट इक्वल हो जाएगा आर वाई के। अच्छा, ये मैं कैसे करता हूँ, ये मैं ऐसे करता हूँ, आर इज इक्वल टू आर एक्स स्क्र प्लस आर वाई स्क्र। तो अगर ये जीरो हो जाए आर वाई स्क्र के साथ, ये उसके रूट कट जाएगा, आर इज इक्वल टू आर वाई हो जाएगा। या अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हैं, आर इज इक्वल टू वेक्टर फॉर्म में प्लस आर वाई जे, इसको कैंसिल करके इसके इक्वल कर सकते हैं वेक्टर फॉर्म। समझ आ रही है? यस सर। यस सर। अच्छा, तो आर वाई क्या हो जाएगा, ये 10 किलो न्यूटन डाउनवर्ड फोर्स है, 4 किलो न्यूटन अपवर्ड है, तो मीन्स आपके पास 4 किलो न्यूटन डाउनवर्ड आ जाएगा। ठीक है, Yes. अगर समझ नहीं आती फिर मुझे बताएं, मैं वो स्टेप्स आपको दोबारा करवाऊंगा। अच्छा, फिर हमने क्या करना है, ऐसे कर लेते हैं कि इन सब फोर्स को यहाँ पॉइंट ओ पे शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो एक तरीका ये है कि ये फोर्स है, इसको यहाँ पे शिफ्ट करें, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा है, मोमेंट फाइंड आउट करें। इस फोर्स को यहाँ पे शिफ्ट करें, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा है, मोमेंट। दूसरा तरीका ये है कि बस रिजल्टेंट फोर्स निकालें, फिर इस पॉइंट के ऊपर मोमेंट निकालें, एम ओ। तो इस फोर्स की वजह से जो मोमेंट होगा, ठीक है, वो होगा एंटी क्लॉकवाइज 6 × 3, और इस फोर्स की वजह से जो मोमेंट होगा वो क्लॉकवाइज होगा, तो -10 × 9 हो जाएगा ना। ये मोमेंट निकाले कितना आएगा, ये जरा कर लें यार, 18 और 90, ये कितना आएगा, 90 माइनस 18 कर दें आप, 72। अच्छा, और यहाँ पे देखते हैं एक और मोमेंट भी है, एक और कपल था ना, जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो उसको एज इट इज ही लिख दें, 52, राइट। और आपने यूनिट्स को भी देखना है, ये किलो न्यूटन है, ये मीटर है, ये किलो न्यूटन मीटर है, कंसिस्टेंट है, तो ठीक है। अच्छा, इसको जब आप सॉल्व करेंगे, 72 प्लस 52 करे क्या आता है, नहीं बल्कि -72 है, -72 प्लस 52 करे क्या आता है आपके पास, -20 आ जाएगा। यस सर, -20। ठीक है, -20 आ गया, यहाँ पे सॉल्व किया भी है। अच्छा, तो इस पॉइंट पे जो रिजल्टेंट फोर्स आपके पास आ रहा है, वो रिजल्टेंट फोर्स आपके पास कितना है, एक डायग्राम में हम ये शो करेंगे कि ये हमारे पास आ गया है रिजल्टेंट फोर्स 4 किलो न्यूटन, और यहाँ पे जो हमारे पास मोमेंट आ रहा है वो है क्लॉकवाइज, कितना है 20 न्यूटन मीटर। अभी इसका रिजल्टेंट निकालना है, मींस इस फोर्स को हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे मूव करना है। सो फोर्स वर्टिकल है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस या इस डायरेक्शन में होगा या एक्स में, इसमें होगा प्लस एक्स में या माइनस एक्स में। ठीक है, क्लॉकवाइज मोमेंट है, सो डेफिनेटली प्लस एक्स में होगा, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो मोमेंट इज इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स डायरेक्शन में है, तो आप आर एक्स कर दें उसको, आर इंटू एक्स। ठीक है, तो यहां से आर आपके पास है और मोमेंट भी है, आर और मोमेंट दोनों है, Yes, sir. है। तो यहां से आप x इज इक्वल टू m नॉट बाय आर कर दें, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। सो दिस इज योर आंसर। समझ आ रही है? यस सर। ओके। अच्छा, फिर इस यस क्वेश्चन में सर। क्या कहा गया, अ कमर्शियल एयरलाइनर विथ 4 जेट इंजन्स ईच प्रोड्यूसिंग 90 किलो न्यूटन थ्रस्ट। अच्छा, कितने इंजन हैं, 1 2 3 4, हर एक प्रोड्यूस कर 90 किलो न्यूटन थ्रस्ट इन अ स्टेडी लेवल क्रूज व्हेन इंजन नंबर 3, मीन इस लेवल पे ये स्टेडी है, व्हेन इंजन नंबर 3 सडनली फेल्स, ये इंजन फेल हो गया, इंजन नंबर 3 जो है क्या हो गया, फेल हो गया, फेल हो गया सर। तो यहाँ पे जो थ्रस्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो तो जीरो हो जाएगा। डिटरमिन एंड लोकेट द रिजल्टेंट ऑफ 3 रिमेनिंग इंजन थ्रस्ट। तो एक ये फोर्स रह गया है, एक ये रह गया है, और एक ये रह गया, 1 2 और 4 पे जो है, इस वजह से जो नेट रिजल्टेंट थ्रस्ट आ रहा है ना, वो आप निकालें। समझ आ रही है? यस सर। तो प्रैक्टिकल सिनारियो दिए, लेकिन प्रैक्टिकल सिनारियो को साइड पे करके जो स्टेटमेंट है उस
स्टेटमेंट पे फोकस करें तो हमारे पास अभी क्या है, 3 फोर्सेस है। हमने क्या करना है, इसका रिजल्टेंट निकालना है। सो सबसे पहले इमेजिन करेंगे कि लेट्स से दिस इज आवर पॉइंट ओ, ठीक है। इस पे तमाम फोर्सेस को हमने लाना है। तमाम फोर्सेस को कैसे लाएंगे, आर इज इक्वल टू आर एक्स प्लस आर वाई। तो इस केस में आर किस चीज के बराबर होगा, आर एक्स के बराबर हो जाएगा। Yes. और तमाम sir. फोर्सेस नेगेटिव एक्स में है, ठीक है। तो इनको जब आप ऐड करेंगे 270 किलो न्यूटन हो जाएंगे, 270 किलो न्यूटन हो जाएंगे, सही है। Yes, sir. Yes. और ऐसे कर लेते ना कि अपना जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें एक्स को इस डायरेक्शन में पॉजिटिव कर लेते हैं, वाई को ऊपर में कर लेते हैं। तो बस इसको पॉजिटिव रहने दें। अच्छा, तो अगर ये फोर्स यहाँ पे हो तो ये आपके पास यहाँ पे आ जाती है 270 किलो न्यूटन, ठीक है। ये फोर्स कितनी होगी यहाँ पे, 270 किलो किलो न्यूटन। न्यूटन। लेकिन अच्छा, लेकिन इन तमाम फोर्सेस को यहाँ पे शिफ्ट करने के लिए ये फोर्स पॉइंट ओ पे कितना मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा था, ये फोर्स पॉइंट ओ पे पहले कितना मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा था, 90 90 इंटू 21 21। अच्छा, ये जो फोर्स है ये कितना मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा था अबाउट पॉइंट ओ, same 90 into 21. ये क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज। ये कैंसिल हो एंटी सकता है, क्लॉकवाइज है। कैंसिल हो यस सकता है, सर, ये दोनों। यस सर, ठीक है। ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है, तो कैंसिल हो ये जाएगा। अच्छा क्लॉकवाइज है। अच्छा, यहाँ पे देख ले, ये जो 90 किलो न्यूटन फोर्स है ये पॉइंट ओ पे कोई मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, 19 to 12। Yes, sir. 19 टू 12। और डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी या क्लॉक, क्लॉकवाइज होगी। सॉरी सॉरी। क्लॉकवाइज होगी, ठीक है। अच्छा, तो स्टेप बाय स्टेप ये तीनों जब आप करेंगे ना तो उसमें दो वैल्यूज कैंसिल हो जाएगी, एक वैल्यू रह जाएगी, 12 इंटू 90। तो ये आपके पास मोमेंट आ गया, ठीक है। तो हमारे पास क्लॉक, ये जो रिजल्टेंट आपके पास आएगा ये आपके पास हो जाएगा ये मोमेंट होगा आपके पास, ठीक है। और जितना भी है 90 इंटू 12 आप करेंगे 1080 न्यूटन मीटर। अभी क्या करना है, हमने इस तरह करना है, इस फोर्स को कहीं पे मूव करना है ताकि इस फोर्स में ऑटोमेटिकली इफेक्ट आ जाए। तो पहले तो जरा ये डिसाइड करें कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे मूव करना है ना, तो अपवर्ड मूव करना है या डाउनवर्ड करना है, डाउनवर्ड करना है डाउनवर्ड करेंगे डाउनवर्ड क्यों, ताकि ये क्लॉकवाइज। हमारे पास क्लॉकवाइज था। ठीक है, ठीक है। क्लॉकवाइज है। तो बस सही है, फिर तो आसान है, फिर तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। एम ओ इज इक्वल टू आर, ठीक है। और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस को आप डी लेते हैं या वाई लेते हैं, जो भी आप नाम दे देते हैं, चलिए डी नाम दे देते हैं। तो डी इज इक्वल टू एम डॉट बाई आर, जरा करें। एम डॉट कितना है, 270 है, और सॉरी एम डॉट 1080 है, और रिजल्टेंट फोर्स 270 है। तो ये जरा सॉल्व करें, 1080 डिवाइड बाई 4 आता 270, है। तो यहाँ से आपके पास 4 आ जाए। इज इट क्लियर। तो आपने क्या करना है, इस फोर्स को यहाँ पे मूव कर देना है, तो ये दोनों आपके पास कैंसिल आउट हो जाएंगे। यू कैन सी यहाँ पे हमने रिजल्टेंट फोर्स को लगा दिया। इज इट क्लियर। Yes, sir. अच्छा अच्छा, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है 287 सॉल्व भी है, इसको आप खुद कर लें, ठीक है। अगेन यूनिट्स को आपने देखने हैं, अगर राइट साइड पे यूनिट डिफरेंट है क्वेश्चंस के तो आपने सिर्फ वहां से कंसेप्ट लेना, ठीक है। तो इसमें भी ये प्रॉब्लम ऐसा ही सिस्टम में है, सोल्यूशन जो जिस प्रॉब्लम के लिए किया गया है वो फुट पाउंड सिस्टम के लिए। तो डेफिनेटली आंसर भी डिफरेंट होंगे, वैल्यूज भी डिफरेंट होंगी आपके पास, ठीक है, लेकिन कंसेप्ट आप ले सकते हैं। ये प्रॉब्लम भी आप कर लें, खुद ही कर लें, ये भी कर लें खुद, ये मैं करवा देता हूँ, ठीक है। प्रॉब्लम सारे आसान है, मीन्स एक आध अब आप कर लेते हैं सबकी समझ आ जाती है फिर, लेकिन बाज़ औक़ात एक आध पॉइंट ऐसे आ जाता है जो कि मैं चाहता हूँ कि आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ। अच्छा, ये आपके पास एक गियर है, ये देखिए आपको नजर आ रहा है, गियर टाइप आपके पास डिवाइस है, और इसके ऊपर एक बेल्ट लगी हुई है, वी बेल्ट है। वी बेल्ट किसे कहते हैं, वी बेल्ट ऐसे होती है,
ठीक है, ये तो मैंने कुछ बहुत ही बड़ा शो कर, इस किस्म की आपके पास वी बेल्ट अगर क्रॉस सेक्शन में देखें तो वो वी की तरह होती है। ठीक है, तो द गियर एंड अटैच वी बेल्ट पुली आर टर्निंग काउंटर क्लॉकवाइज। क्या हो रहा है, ये क्या जो गियर और पुलीज है, वी बेल्ट जिस पुली के ऊपर लगा हुआ है किस डायरेक्शन में रोटेट हो रही है जी? Anti-clockwise. एंटी क्लॉकवाइज, दिस मींस रोटेशन इज this one and are subjected to tooth load of 1600 न्यूटन। मींस टूथ लोड आपके पास यहाँ पे इस टीथ के ऊपर जो लोड आ रहा है वो कितना है, 1600 न्यूटन है। ठीक है, एंड 800 न्यूटन एंड 450 न्यूटन टेंशंस इन द वी बेल्ट। वी बेल्ट में जो आपके पास टेंशन आ रहा है मींस ये वी बेल्ट है ना, तो कितना है 450 एंड 800 न्यूटन। ठीक है, करना क्या है, represent the action of these three forces, ये तीन forces का action by a resultant force R at O। We need to find the resultant force, the resultant of all these forces at point O and a couple of magnitude M। कहने का मतलब है इन तमाम तीनों फोर्सेस को पॉइंट O पे शिफ्ट करें, तो जब शिफ्ट करेंगे डेफिनेटली आप एक रिजल्टेंट फोर्स लगा देंगे। ठीक है, और साथ में जो तीनों फोर्सेस की वजह से पॉइंट O पे जो मोमेंट आ रहे थे वो मोमेंट भी लगाएंगे ना साथ में, या वो कपल भी लगाएंगे। सो पॉइंट O पे हमारे पास क्या 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 आएगा, क्या क्या होना चाहिए, रिजल्टेंट फोर्स एंड रिजल्टेंट कपल या रिजल्टेंट मोमेंट। सही है, वो आपसे मांगा गया। इज इट क्लियर? यस सर। Yes. अच्छा, फिर आगे क्या पूछा गया, इज द यूनिट स्लोइंग डाउन और स्पीडिंग अप। क्या ये सिस्टम जो रोटेट कर रहा था पहले, ये बताएं कि ये स्लो हो रहा है या इसकी स्पीड बढ़ रही है। सो जब हम फाइनली यहाँ पे जो मोमेंट नेट मोमेंट निकालेंगे ना पॉइंट O पे, अगर वो मोमेंट या कपल इस डायरेक्शन में है, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब है कि ये जो इनिशियल स्पीड है इसकी रोटेशन वो बढ़ेगी। और अगर पॉइंट O पे जो मोमेंट अप्लाई हो रहा है अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज में है, तो फिर क्या होगी, स्पीड स्लो होगी। कम होगी। ठीक है, तो वी नीड टू फाइंड आउट based on this we will सर answer ने के कमी की बात। is the unit slowing down or speeding up, right? हाँ, इज द यूनिट स्लोइंग डाउन और स्पीडिंग अप। okay, so आ जाते हैं इस प्रॉब्लम पे। सबसे पहले क्या करेंगे, रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे। ठीक है, सो रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए तमाम फोर्सेस के कंपोनेंट्स निकालें, तमाम फोर्सेस के कंपोनेंट्स कंपोनेंट्स निकालें। निकाले। इस फोर्स के दो कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं आप 450 के, यस सर। एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा ना, 450 cos 15 450 sin 15, ये तो कर सकते हैं ना। यस सर। Yes, sir. और इसके भी दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, cos 15 sin 15। ठीक है, क्योंकि इसका एंगल गिवन है। अच्छा, इसके भी दो कंपोनेंट्स निकाल लेंगे, एक x में एक y में। लेकिन एक्स वाई कंपोनेंट निकालने के लिए द थिंग विच वी नीड टू हैव, वो क्या है, वो चीज है बेसिकली एंगल। इफ यू हैव फोर्स एंगल विद एक्स और वाई, तो तभी आप उसका कंपोनेंट निकाल सकते हैं एक्स और वाई में। तो ये बताएं जो 1600 न्यूटन फोर्स है इसका एंगल एक्स या वाई के साथ गिवन है जी। यस सर, गिवन है। क्या एंगल है सर गिवन नहीं है, फाइंड करना है। सर Find गिवन करना नहीं है है। लेकिन हम फाइंड करेंगे। ठीक है, फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे देख लें, ये हॉरिजेंटल और इस लाइन के दरमियान ये एंगल कितना है, इस लाइन के दरमियान 30 डिग्री। 30 डिग्री। और हमारे पास एक रूल है कि परपेंडिकुलर आर्म्स के दरमियान एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ द एंगल बिटवीन टू लाइन इज 20 एंड इफ यू ड्रॉ परपेंडिकुलर टू दीस टू लाइंस, तो उसके दरमियान एंगल क्या होगा, वो भी 30 होगा। 30 होगा या 20 ही होगा, 30 होगा सर। जो इनिशियल एंगल होगा वही होगा ना। फॉर एग्जांपल, इफ द Yes, इनिशियल sir. एंगल बिटवीन टू लाइंस इज 30
और परपेंडिकुलर लाइंस आप उसको ड्रा कर लेंगे तो वो एंगल भी 30 ही आएगा। तो ये देखें, ये जो लाइन है और ये लाइन ये आपस में परपेंडिकुलर है ना? Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. और इस ये हॉरिजेंटल जो लाइन है, अगर इसको मैं परपेंडिकुलर ड्रा करना चाहूं तो वो क्या होगा? वर्टिकल होगा ना? Y-axis. ठीक है। अच्छा, अगर ये 30 है तो ये एंगल कितना होना चाहिए? 30. 30, sir. 30। अगर ये 30 हो गया है तो ये एंगल कितना है? ये तो ऑलरेडी गिवन है, 20 है। 10 होगा Yes, sir. sir. 10. तो ये कितना रह जाएगा? 10 degree. 10 रह ये 10 रह जाएगा। और ये फोर्स है हमारे पास 1600 न्यूटन फोर्स है हमारे पास, जो F3 है, ठीक है। और ये क्या चीज है? ये हमारे पास है वाई एक्सिस है। समझ आ रही है? ये क्या हमारे पास? Y axis. Y-axis. वाई एक्सिस है। तो हमारे पास वाई एक्सिस के साथ हमें क्या मिल गया? एंगल मिल गया, राइट? Yes, Yes, sir. sir. ओके, तो वाई एक्सिस के साथ हमें ये एंगल मिल गया। नाउ लेट्स सी, ये जो एंगल है ये है 10 डिग्री। तो अभी इस फोर्स के दो कंपोनेंट्स हो सकते हैं। अगर ये फोर्स ऐसा है तो एक इसका कंपोनेंट होगा y, एंगल 10 है ना, ये हो जाएगा 1600, क्या cos या sin? Cos, sir. cos 10, और एक ये कंपोनेंट x में, ये क्या होगा? Sin. sin 10 डिग्री। सही है? Yes, ठीक है sir. ना? अभी तमाम x कंपोनेंट को ऐड करेंगे, तमाम y को करेंगे, एंड देखते हैं कि क्या होता है। ओके, तमाम x कंपोनेंट्स को ऐड करते हैं। तो x कंपोनेंट को जब आप ऐड करेंगे, 800 cos ऑफ 15 हो जाएगा, फिर दूसरे का 450 cos ऑफ 15 हो, ठीक है। और ये जो आपने अभी किया है उसका x कंपोनेंट क्या है? डायग्राम में देख लें, 1600 इंटू 10. साइन ऑफ 10, 30 माइनस 20, वही आपके पास 10 आ रहा है। सो अभी आपको अंदाजा हो गया होगा कि 30 माइनस 20 इन्होंने क्यों लिखा। ओके, फिर y में यहाँ से आपके पास कोई वैल्यू आ जाएगी। y में आप देख लें, y में भी इसी तरह 800 और 450 साइन ऑफ 15 हो जाएगा। डायरेक्शन आपने देखते होंगे, डायरेक्शन इसके इसमें अपोजिट होंगे। 800 माइनस 450 साइन ऑफ 15 हो जाएगा। और ये जो कंपोनेंट है आपके पास अपवर्ड है, पॉजिटिव होगा, ठीक है। वर्टिकल की जब हम बात करेंगे तो 1600 cos ऑफ 10 हो जाएगा, ठीक है। एंड फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड आउट द वर्टिकल कंपोनेंट। सो वी हैव नाउ आर एक्स, वी हैव आर वाई, सो यहाँ से हमारे पास वेक्टर आर आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. Clear है sir. ठीक है, ये चीज तो होगी। अभी हमने क्या करना है, इन तमाम फोर्सेस का जो मोमेंट है अबाउट पॉइंट ओ वो निकालना है, ठीक है। तो ये अब देखें, ये जो 450 न्यूटन फोर्स है और पॉइंट ओ है, इसके दरमियान अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना चाहूँ तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, Yes, sir. Yes, sir. और ये रेडियस के बराबर है। Yes, sir. रेडियस के बराबर है. और रेडियस कितना है? 280. 280। तो मींस 450 मल्टीप्लाई बाय 0.28 कर दें तो अबाउट पॉइंट ओ ये मोमेंट आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। और मोमेंट होगा Yes, sir. एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, फिर ये देखिए, इस फोर्स और इसके दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो भी रेडियस के बराबर है। सो 800 इंटू 0.28 पे कर लूंगा। समझ आ रही है? Yes, और ये sir. आपके पास माइनस होगा। सो 450 माइनस 80 करके इंटू 0.28 भी कर सकते हैं हम, जिस तरह इन्होंने यहाँ पे किया। अच्छा, एक फोर्स रहेगा ये फोर्स। अभी इस फोर्स, ये जो 1600 न्यूटन फोर्स है और पॉइंट ओ के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, वो ये है, जो कि रेडियस के बराबर नहीं है। समझ आ रही है? Yes, sir. यस सर। मींस आपने क्या करना है, आपने फोर्स को अगर आके लेके जाए ना, तो यहाँ पे कहीं पे ये फोर्स आएगी, ये डिस्टेंस जो कि रेडियस से कम होगा, ये आपने निकालना।
एक ये तरीका हो सकता है, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि जो फोर्स आपके पास है, इस फोर्स के दो कंपोनेंट्स होंगे ना, यस सर। एक ये कंपोनेंट होगा और एक ये कंपोनेंट होगा, ठीक है। फोर्स कितना है 1600, इस कंपोनेंट की वैल्यू क्या होगी 1600 इंटू cos 20। cos 20 या sin 20, एंगल तो यहां पे है भाई, यस इसमें सर उस दूसरे की बात करें। sin 20 हो जाएगा ना, यस सर। क्लियर है ये। अच्छा ये क्या हो जाएगा, ये वाला cos 20 हो जाएगा, cos ठीक है। 20। अच्छा इस फोर्स की वजह से पॉइंट ओ पे कितना मोमेंट आएगा, इस फोर्स की वजह से 0 सर। 0 आएगा, तो इसको तो निकाल ही लें अभी, और इसको निकाल लें। अच्छा एक इस फोर्स की वजह से कितना मोमेंट आएगा अबाउट पॉइंट ओ, इसके लिए हमें ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए ना, ठीक है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है सर ये 150। 150 या 0.1 मीटर, ठीक है। तो 1600 इंटू cos ऑफ 20 इंटू Yes. 0.15, 1600 इंटू cos ऑफ 20 इंटू 0.15, ठीक है। यस सर। यस तो इन सर। सब वैल्यूज को जब आप कंबाइन करेंगे, व्हाट यू विल गेट योर रिक्वायर्ड मोमेंट। 127.5। अच्छा ये मुझे बताएं, ये वैल्यू आपके पास प्लस में आई है या माइनस में आई है, 225.5 माइनस 98 जब करेंगे 127.5 आ जाता है, तो ये प्लस है या माइनस है, पॉजिटिव है। प्लस है। तो प्लस मींस क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज एंटी एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। या काउंटर क्लॉकवाइज। तो पहले ये बताएं कि ये जो व्हील पहले रोटेट कर रहा था वो काउंटर क्लॉकवाइज में था या एंटी में था, या सॉरी काउंटर क्लॉकवाइज में था या क्लॉकवाइज में था, क्लॉकवाइज में तो। क्लॉकवाइज में था। अच्छा और अभी जो आपने फोर्सेस लगाई है, ये जो फोर्सेस हैं ये भी इसको काउंटर क्लॉकवाइज में रोटेट करने की कोशिश कर रही है फोर्सेस, यस सर। Yes सर। तो ये बताएं कि इसका स्पीड बढ़ेगा या कम होगा। कम बढ़ेगा सर। होगा सर। कम होगा। कम होगा सर। अच्छा कम होगा, कम क्यों होगा, सर पहले क्लॉकवाइज कर रहा था और अभी जो फोर्सेस हमने किए हैं इसमें एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है। पहले इनका कहना है कि पहले जो हमारे पास क्रॉस फोर्सेस थी, रोटेशन हो रही है। ठीक है, वो वो क्या थी हमारे पास, पहले क्या थी, जो रोटेशन थी वो किस डायरेक्शन में थी, क्लॉकवाइज में थी सर। ये आपको जो मैंने लाइन लगाई देख लेना स्टेटमेंट में, एंटी ये क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज जी, ये क्लॉकवाइज है या काउंटर क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। काउंटर काउंटर क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज। ठीक है। और अभी क्या है, अभी और अभी काउंटर भी क्लॉक काउंटर क्लॉकवाइज है। तो स्पीड बढ़ेगी या कम होगी, बढ़ेगी। बढ़ेगी सर। बढ़ेगी, ठीक है। काउंटर तो स्टेटमेंट में यह था कि आपके पास क्लॉकवाइज। ऑलरेडी इट इज इन काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है। और जो फोर्स हमने लगाई दे आर आल्सो प्रोड्यूसिंग काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन, सो एज अ रिजल्ट द यूनिट विल स्पीड अप, इज इट क्लियर, यस सर। ठीक है। यस सर। अच्छा ये जो ये प्रॉब्लम भी कर लेते, चले छोटा सा प्रॉब्लम है, okay, so in the equilibrium position shown the resultant of three forces, we are having these three forces on this P, three forces acting on the bell crane, means this system or this device through the bearing O, this is bearing O. Determine the vertical force P, you need to find out this vertical force P. Does the resultant depend on O? So in question if you look here in the equilibrium position, the system can be in equilibrium, means ये सिस्टम आपके पास कब इक्विलिब्रियम में हो सकता है कि ये जो फोर्सेस आपके पास रोटेशन प्रोड्यूस कर रही है और ये जो फोर्स पी है, ये जो रोटेशन है अगर आपस में इक्वल हो जाए तब आपके पास पॉइंट ओ पे इक्विलिब्रियम आ सकता है जहां पे ज्वाइंट है, यही होगा ना। यस सर। अच्छा सो जरा देख लेते हैं कि
इन दो फोर्सेस की वजह से कितना मोमेंट आपके पास आ रहा है, इसको मोमेंट वन का नाम दे देते हैं। मोमेंट वन शुड बी 80, डिस्टेंस कितना परपेंडिकुलर पॉइंट ओ तक? 400 0.4 मीटर। 0.4 मीटर, ठीक है। अच्छा, और 120 न्यूटन फिर है आपके पास, 120 इंटू 0.2 हो जाएगा। यस सर। यस सर। और ये 200 मोमेंट, ये मोमेंट काउंटर क्लॉकवाइज है, ये भी काउंटर क्लॉक, तो प्लस आएगा ना दोनों के साथ। दिस शुड बी प्लस, यस दिस सर। शुड बी प्लस। अच्छा, अभी फोर्स पी का यस देख सर। लेते हैं, फोर्स पी का देख लेते हैं, M2, M2 का देख लेते हैं, ये क्या हो जाएगा? अगर मैं इस फोर्स को ऐसे कर लूं तो इसके दो कम परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं गिवन यार इसका, तो ऐसे कर लेते हैं, इसका एक कंपोनेंट ये निकाल लेते हैं और एक कंपोनेंट ये हो जाएगा ना, ठीक है। यस सर। यस सर। अच्छा, तो यहाँ पे आप देख लें, ये जो एंगल है ये गिवन है, कितना है? 20। 20 डिग्री। 20 डिग्री है। अच्छा, सो ये गिवन है। अच्छा, अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो फोर्स आपके पास यहाँ, ये जो लाइन है, इस लाइन के परपेंडिकुलर मैं एक लाइन लगा देता हूँ, ठीक है, और इसके भी परपेंडिकुलर एक लाइन लगा देता हूँ, तो ये एंगल कितना होना चाहिए? 20। ये भी 20। 20 ये भी होगा। 20, ये भी 20 होना चाहिए। तो कहने का मतलब है ये एंगल कितना होगा? 20। यस सर। यस सर। अच्छा, ओके, तो ये एंगल भी आपके पास हो जाएगा 20। सो कहने का मतलब ये, अगर ये 20 हो जाता है, सो ये कंपोनेंट क्या 20 हो जाएगा? पी कॉस 20 डिग्री हो जाएगा। और ये जो कंपोनेंट है ये पी साइन 20 हो जाएगा ना। तो इसकी वजह से पॉइंट ओ पे कितना मोमेंट आ रहा है इस कंपोनेंट की वजह से? 0। 0, ठीक है। तो इस तरह कर लेते हैं, इसकी वजह से तो मोमेंट नहीं आ रहा, तो मोमेंट जो आ रहा है आपके पास वो आ रहा है पी कॉस 20 डिग्री इंटू डिस्टेंस कितना है परपेंडिकुलर? 0.25। 0। और ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज। जी, क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज दिस सर। माइनस शुड बी साइन। नेगेटिव, ठीक है। ठीक यस है, सर। माइनस हो जाएगा। सो हमारे पास अगर सिस्टम को इक्विलिब्रियम में चाहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो दोनों साइड से मोमेंट लग रहे हैं, इन दोनों को अगर आप ऐड कर दें, सो इट शुड बी इक्वल टू 0, यस सर। क्लॉकवाइज है सर। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इन दोनों को जब मैं ऐड कर दूंगा, इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा, सो दैट शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। यस सर। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए, यस ये सर। न्यूमेरिक वैल्यू है, ये भी न्यूमेरिक वैल्यू है, ये भी न्यूमेरिक वैल्यू, एक ही अननोन है, वो अननोन क्या है? टी। वो अननोन क्या है? पी टी। है सर, फोर्स। टी, तो पी। यहां से टी आ जाएगा ना आपके पास, ठीक है। यस सर। अच्छा, यस सर। इस तरह कर लेते हैं, जरा इसको मैं, आप जरा इमेजिन करें, इस प्रॉब्लम को मैं दोबारा सॉल्व करता हूँ, लेकिन वैल्यूज थोड़ी सी डिफरेंट कर देता हूँ। ये 80 न्यूटन फोर्स एज इट इज है, ये डिस्टेंस भी चेंज नहीं हो रहा, ये भी चेंज नहीं हो रहा, ये भी चेंज नहीं हो रहा, ये जो फोर्स पी है ये भी चेंज नहीं हो रहा, और ये एंगल भी चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। और ये जो थीटा है इसकी वैल्यू मैं 10 डिग्री बढ़ा देता हूँ, क्या कर देता हूँ, इसके साथ मैं 10 डिग्री ऐड कर देता हूँ या माइनस कर देता हूँ, इसकी वैल्यू मैं चेंज कर देता हूँ, ये डिस्टेंस भी चेंज नहीं हो रहा। तो ये मुझे बताए कि आंसर पे कोई फर्क पड़ेगा? उसका बेहतरीन तरीका क्या है कि यहाँ पे आप देख लें, इस प्रॉब्लम में जहां पे थीटा आ रहा है उसकी वैल्यू चेंज कर दें। थीटा कहाँ पे आ रहा है इस प्रॉब्लम में? कहीं पे है इस प्रॉब्लम में? आपने कहीं पे थीटा को यूज किया? नो सर। नहीं किया। तो अगर मैं इसको
30 डिग्री पे चेंज कर दूं तो ये आंसर चेंज होगा आपका? जी मीन्स यहाँ पे थीटा की जो भी वैल्यू होगी इस इक्वेशन में आपने थीटा की वैल्यू डाल देनी है। थीटा तो यहाँ पे है ही नहीं। Yes, तो sir. कहने का मतलब यह है कि थीटा की वैल्यू के चेंज होने से इस प्रॉब्लम पे कोई फर्क पड़ता है या पी की वैल्यू पे कोई फर्क पड़ता है? No, sir. नो सर। अच्छा रिमेंबर थीटा और ये एंगल सेम नहीं है, ये डिफरेंट एंगल है, थीटा डिफरेंट एंगल है। सो क्वेश्चन में आपसे कहा गया है डज द रिजल्ट डिपेंड ऑन थीटा? So what should be the नो answer? No. No. The forces they are not dependent on theta. Right? Clear है? Yes, sir. Okay. So ये जो प्रॉब्लम है और आगे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं या जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं इसके साथ वो फिर आप काइंडली खुद देख लें, ठीक है? एंड जितने भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं आप देख लें। दिस इज द एंड ऑफ क्लास। इफ यू आर हैविंग एनी क्वेश्चन इन दिस क्लास यू कैन आस्क। कोई क्वेश्चन वगैरह वो आप पूछ सकते हैं। आई होप जो कुछ करवाया उसकी समझ आ गई होगी। Yes, sir. ठीक है, अगर समझ आ गई है और आज की क्लास से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है तो रिकॉर्डिंग फिर मैं ऑफ कर देता हूँ। यस सर। ओके